Nomenclature of carbon compounds. Hello everyone, my name is Rohit Sharma and these are Abhinav and Karthik. Every individual is unique in its own terms and hence they are given names to create differentiation among them. हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से अलग होता है, यूनिक होता है. उनकी यूनिकनेस की वजह से उनके बीच डिफरेंशिएट करने के लिए उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं. नाउ सेम थिंग इज डन विद कार्बन्स. दो all the carbon atoms belong to a same parent, that is carbon, but उनके functions, उनके characteristics के हिसाब से they are given different names. This process of naming carbon compounds is known as nomenclature. It is a method of naming organic chemical compounds. हर chemical compound को उनके structural formula और उनके functions के base पे एक नाम दिया जाता है. As we all know, in our Indian culture, there is a ritual named Namkaran in which a newborn baby is given name by the priests. Similarly, carbon compounds are given the name after they come into existence. जैसा कि हमारे इंडियन कल्चर के अंदर नामकरण किया जाता है जैसे ही कोई नया इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में आता है, उसी तरीके से कार्बन कंपाउंड्स जैसे ही एग्जिस्टेंस में आते हैं उनका नाम रखा जाता है. अब ये काम कौन करता है? IUPAC, which is also known as International Union of Pure and Applied Chemistry. What is IUPAC? IUPAC is an international organization which is responsible for standardizing nomenclature of organic chemistry and other sciences. IUPAC एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है इन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री. रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर. नाउ IUPAC ने कुछ सेट ऑफ रूल्स तैयार किए हैं एक रूल बुक के अंदर विच इंक्लूड्स द डिफरेंट गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू विच वी नेम डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स. नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल ये है कि किसी भी कंपाउंड के नाम को हम डिफरेंशिएट करते हैं उसके प्रीफिक्स और उसके सफिक्स के हिसाब से. Parent hydrocarbon is the main straight chain of hydrocarbon depending on the number of carbon atoms in that chain. Parent hydrocarbon is always considered to be the prefix. Parent hydrocarbon का कैसे पता चल सकता है? Maximum carbon atoms in a series can be considered as parent carbons. For example, जैसा हम ये कार्बन सीरीज देख पा रहे हैं, यहां एक सीरीज के अंदर 10 कार्बन एटम्स हैं. सो दिस विल बी आवर पेरेंट चेन. अगर हम दूसरी चेन की बात करें जो कि लिंक्ड है विद अ साइड चेन, इस केस में स्ट्रेट लाइन में अगर हम देखें तो 8 कार्बन एटम्स हैं, वेयर एज जहां पे हमारी साइड चेन शुरू हो रही है अगर हम वहां से कंसिडर करें सो देयर आर 7 कार्बन एटम्स. द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन एंड दैट इज C8. And the chain attached to it will be considered as side chain. Now, as we clearly observed, parent hydrocarbon is used as prefix and functional groups are used as suffix. Now let's discuss a few of them with some examples. For example, as we can clearly see a carbon chain here, number of carbon atoms are 4. So we will use but for it. And all of the carbon atoms possess single bond, so we will use A and E for it. If we combine both of them, it is butane. As we can clearly see, there are two different components attached to the carbon chain. One is chlorine and one is OH, which is denoted as alcohol. One of them is substituent and other is functional group. Chlorine here is substituent and OH is functional group. Substituents are always part of prefix whereas functional groups are considered to be part of suffix. So carbon compound will be butane, E will be replaced by OL and it will be butanol. So this will be chlorobutanol. अब आप अगर इस कंपाउंड को क्लियरली देखें तो इसके नाम को हमने 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है. सबसे पहला सेक्शन क्लोरो विच इंक्लूड्स सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद ब्यूट विच इज नंबर ऑफ कार्बन्स, आफ्टर दैट नेचर ऑफ बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसके हिसाब से, एंड एट द एंड एज सफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स.
बेसिकली अगर हम पूरे कार्बन कंपाउंड के नेम को 3 मेन हिस्सों में बांटे तो इट विल बी प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स. इफ वी टॉक अबाउट दिस ब्रांच्ड चेन, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6. Prefix, word root, suffix. The same pattern will be followed. Chloro will be our prefix. Now, since it is a cyclic compound, तो इसके नाम के अंदर cyclo आ जाएगा. Hex, because there are 6 number of carbon atoms. Single bond, so ANE, and suffix will be OH, which is used for alcohol. So, the name of this carbon compound will be chlorocyclohexanol. Now, as you can clearly see, we have mentioned the number of the carbon chain with which chlorine is attached. Chlorine जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसका नंबर भी हमने मेंशन किया है. Then it will become 4-chlorocyclohexanol. Hex जो word root है, it includes number of carbon atoms. Ane, which is primary suffix, single, double and triple bond respectively. OL, which is secondary suffix, जो कि शो करता है फंक्शनल ग्रुप्स को. Cyclo, which is primary prefix, जो कि हमें ये बताता है कि वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है. जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड है वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है. अगर इट इज ओपन देन वी यूज नथिंग फॉर इट. सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन अटैच्ड है या नहीं. लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल. इस केस में 4 कार्बन एटम्स हैं, सो वी यूज ब्यूट, एंड सिंगल बॉन्ड है, देन वी यूज ANE. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्यूटेन. सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट्स की. नॉमेनक्लेचर में कार्बन कंपाउंड को क्या नाम दिया जाएगा ये सबसे पहले डिपेंड करता है उसके वर्ड रूट पे. वर्ड रूट का सिंपल सा मतलब है इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट प्राइमरी सफिक्स, एज वी ऑल नो, carbon compounds with single bond are considered to be ane, carbon compounds with double bond are considered to be ene, and triple bond ine respectively. Secondary suffix यानी कि functional groups. Functional groups को अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है. अगर एंड में COOH हो देन इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कार्बन चेन जो हमारे पास में है, it is propane. Why propane? Because there are 3 number of carbon atoms attached to it. फंक्शनल ग्रुप के अंदर आने वाला कार्बन एटम भी इसी कंपाउंड का माना जाएगा. Hence, we will include the carbon of carboxylic acid as well. Since it is a carboxylic acid, we will use oic acid in the end. So this structure is of propanoic acid. Next functional group is aldehyde, which is represented by Al. As we can clearly see, CHO नाम का एक functional group attach किया गया है, which denotes aldehyde. Aldehydes को Al के साथ denote किया जाता है, and since there are 3 number of carbon atoms, so it will be propanol. Ketone, जिसे हम last में ONE से denote करते हैं. For example, this is the structure of carbon atoms. Ketone एक ऐसा functional group है जो कार्बन चेन के मिडिल में अटैच होता है. अब इस केस में हमें सबसे पहले उस तरफ से चेन को शुरू करना पड़ता है जहां से ये फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक हो. सो वी विल बी स्टार्टिंग काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द राइट साइड. यहां पे कीटोन जो है ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है. सो द कार्बन कंपाउंड विल बी, एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 5, सो इट विल बी पेंट 2-one. नेक्स्ट इज OH, which is denoted as alcohol, जिसे हम OL से डिनोट करते हैं. Then it is esters. Esters जिन्हें हम COOR से डिनोट करते हैं. Now what is R here? R is alkyl group. Alkyl group जब हम किसी भी एल्केन्स के साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. अगर आप क्लियरली देख पाए तो यहां एक हाइड्रोजन को जब रिमूव कर दिया जाता है देन एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड. एस्टर्स जो हैं ये एंड में एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, जैसा कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं. COOR की जगह पे एक एल्काइल अटैच हो जाता है, जैसे इस केस में मिथाइल, देन एस्टर इज फॉर्म्ड.
Since alkyl groups are attached with esters, तो alkyl का नाम and after that alkanoate is used to write the name of these carbon compounds. For example, this is the structure of methyl butanoate. Let's see another example of ethyl ethanoate in the case of esters. Secondary prefix list. Secondary prefix list में दो चीजें इंक्लूड की जाती हैं, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर के रूल्स को मेनली हम तीन कैटेगरीज में बांटते हैं. सबसे पहला मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग एंड देन नेमिंग. सबसे पहले बात करते हैं मेन चेन सिलेक्शन की. सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल. मेन चेन वही चेन होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस there are 4 carbons attached in a sequence, and in second case there are 5 carbons attached in a sequence. In this case 5 carbons will be considered as main chain because it is the longest chain. और रही बात CH3 की, it will be considered as a side chain. In this kind of structure, number of carbon atoms in a series, most number of carbon atoms in case 1 are 5 and in case 2 7. Next question that comes through our mind is how to select the main chain in case of double bond, triple bond and functional group. For example, in this structure एक सीक्वेंस के अंदर लगातार 7 कार्बन की चेन बन रही है. कायदे से तो मेन चेन इसे ही कहना चाहिए, लेकिन मेन चेन विल बी दिस. रीजन बिहाइंड दैट इज इसके अंदर डबल बॉन्ड है. जब भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक साथ हों तो ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दी जाती है. सो दिस विल बी आवर मेन चेन. सिंगल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप्स में से ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. इस केस में हमारा फंक्शनल ग्रुप इज राइट देयर इन बिटवीन. तो उस केस में हम किस कार्बन चेन को मेन चेन कंसिडर करेंगे? इन दिस केस अ स्ट्रेट चेन हैज 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन अगर हम साइड चेन को भी साथ में कंसिडरेशन में लें तो इट ऑल्सो हैज 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो दोनों केस में अगर 6 कार्बन एटम्स हैं, यानी कि सिमिलर कार्बन एटम्स हैं, अब हम किस चेन को मेन चेन कंसिडर करेंगे? इन सच केसेस वी विल कंसिडर द काउंट ऑफ नंबर ऑफ साइड चेन्स, यानी कि जिस कार्बन चेन के साथ नंबर ऑफ साइड चेन्स ज्यादा अटैच्ड होंगी उससे हम मेन चेन कंसिडर करेंगे. In this case, case number 1, that is with 2 side chains, will be considered as main chain. अब हम लोग बात करते हैं नंबरिंग के बारे में. नंबरिंग में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है लोएस्ट लोकेंट रूल. लोकेंट वर्ड का सीधा सा मतलब है लोकेशन, यानी कि इस कार्बन चेन में हम चाहेंगे कि हमारे डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उन्हें सबसे लोएस्ट लोकेशन मिले. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस केस में साइड चेन पे CH3 अटैच्ड है. इन दिस केस वी नीड दैट द CH3 मस्ट हैव लोएस्ट लोकेंट. वी विल स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम आवर लेफ्ट साइड ताकि हमारे CH3 को लोएस्ट लोकेंट मिले. नाउ लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल जहां हमारे पास 2 अलग अलग साइड चेन्स अटैच्ड हैं अलग अलग पोजिशन पे. इस केस में लोएस्ट लोकेंट रूल हमें हर एक साइड चेन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा. 2 साइड चेन्स एक कार्बन के साथ अटैच्ड हैं. इन दिस केस वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, यानी कि सबसे पहले इफ वी स्टार्ट काउंटिंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो सबसे पहला साइड चेन नंबर 2 पे आ रहा है एंड उसके बाद अगला नंबर 5 पे आ रहा है. एंड इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सबसे पहला कार्बन चेन नंबर 2 पे आ रहा है, उसके बाद नंबर 5 पे आ रहा है. इन दिस केस हमें क्या करना है? वी नीड टू काउंट द सीक्वेंस ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि पहले केस में 2, दूसरे केस में 2, अगले केस में 2, दूसरे केस में 5. इन दिस केस द शॉर्टेस्ट वन विल बी कंसिडर्ड, यानी कि जो लेफ्ट टू राइट वाला नंबरिंग है दैट विल बी कंसिडर्ड इन दिस केस. So in this case, the main chain will be when we'll count from left to right. In this case, जहां हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और एक साइड चेन भी है,
डबल बॉन्ड को साइड चेन से पहले प्रेफर किया जाएगा, सो लोएस्ट लोकेंट रूल मस्ट बी गिवन टू डबल बॉन्ड। हमारा डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है एंड साइड चेन इज ऑन नंबर 4, सो नंबर 2 will be considered to be lowest locant. In the case of triple bonds and double bonds are given more preference than that of triple bond. Let's see another example. In this case we've got a double bond and a triple bond. Now अगर हम इसे right to left नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड आ रहा है नंबर 2 पे एंड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है नंबर 4 पे। वेयर एज अगर हम इसे लेफ्ट टू राइट लेबल करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है नंबर 2 पे एंड डबल बॉन्ड आ रहा है नंबर 4 पे। बेसिकली दोनों केसेस में हमारे लोकेंट्स जो हैं वो एकदम सिमिलर हैं। इस केस को बोला जाता है इक्विवेलेंट नंबरिंग, यानी कि इस केस में हम किसी भी तरीके से इसको मेन चेन कंसिडर कर सकते हैं, द मेन चेन विल बी सेम। इन सच केसेस एज वी ऑलरेडी नो डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा, सो लोएस्ट लोकेंट विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड, यानी कि लोकेंट्स व्हेन वी काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल बी कंसिडर्ड। लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल जहां हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और एक फंक्शनल ग्रुप है। इन सच केसेस फंक्शनल ग्रुप विल बी प्रेफर्ड मोर देन डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट रूल दिया जाएगा। सो इन दिस केस वी विल काउंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, lowest locant will be given to our functional group, that is alcohol here, and it will be 2. Next important rule is of chain terminating functional group. There are a few functional groups like carboxylic acid जो जहां पे अटैच होते हैं उसके आगे उस चेन को टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, अगर हम नॉर्मल रूल्स के हिसाब से चलें तो हमारा मेन चेन ये होना चाहिए, लेकिन in case of carboxylic acid the main chain will be this and after that the chain is terminated. So these functional groups are known as chain terminating functional groups. Rules of nomenclature, main chain selection और नंबरिंग के बाद अब हम लोग बात करते हैं नेमिंग के बारे में। नेमिंग में सबसे पहला रूल है हमारा नंबर ऑफ कार्बन्स इन द एटम। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उस हिसाब से उसका नेम हम डिराइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन द अबव सिचुएशन देयर आर 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स along with 2 side chains attached to it which are methyl and ethyl. अब इस केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, यानी कि M और E में से सबसे पहले E आता है, सो इस कार्बन कंपाउंड का नाम इथाइल होगा। And the position of ethyl is 3-ethyl. After that we'll write 2-methyl. Since there are 6 number of carbons and that too with a single bond, it will be considered as hexane. तो इस कंपाउंड का नाम होगा 3-ethyl 2-methyl hexane. In this example, जहां सेकेंड नंबर पे दोनों तरफ सेम साइड चेन है, उस केस में हम क्या करेंगे? अब इस केस में हम इसको कैसे लिखेंगे? 2-methyl ब्यूटेन, राइट? रॉन्ग। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां साइड चेन्स सेम नंबर पे अटैच्ड हैं तो हम उसे डाइमिथाइल लिखेंगे। इट विल बी रिटन एज डाई। इफ 2 साइड चेन्स आर अटैच्ड विद द मेन चेन एट द सेम पोजिशन, अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। इन दिस केस वी विल राइट डाइमिथाइल. And since there are 4 number of carbon atoms, dimethyl butane. In this case, 2 side chains are attached with the main chain. One of them is methyl and another one is ethyl. So in this case, 3-methyl and 4-ethyl hexane. So in this case, as we already discussed, ethyl E पहले आएगा, methyl M बाद में आएगा on their position, and after that hexane. Now let's talk about multiple bonds. Multiple bonds हम single bond को single dash के साथ donate करते हैं, that is multiple bonds, that is alkane, alkene and alkyne, which are shown as single bond, double bond and triple bond respectively. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में जहां हमारे पास सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड साथ में है, वी विल कंसिडर द ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट। सिंस देयर आर 4 कार्बन एटम्स, तो ब्यूट
एंड सेकंड कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड है ब्यूट 2 आयन. दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कार्बन